Hello everyone. Today this video is for class 11th. Today I'm going to cover unit 3rd, that is physical fitness, wellness and lifestyle. Before starting this chapter, I just wants to correct one my mistake जो मैंने लास्ट वीडियो में किया हुआ है. While discussing about Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, by mistake I told there that it was started in the memory of ex-president Mr. Rajiv Gandhi. That president word is incorrect. Actually, he was the ex-prime minister of India. Thank you so much, Ankur. Ankur is my younger brother, and he noticed me, he acknowledged me about this silly mistake. Actually, sometimes it happens, it's a human error. So just correct that mistake. And thank you so much, Ankur. And please keep updating me so that my videos or my classes will be more perfect. Thank you so much. Now, I'm going to start this chapter number 3rd or unit 3rd. And before starting content, please subscribe my channel, because then only you can get new videos, and maybe these videos are beneficial for you or for some other person, those who are related with you. So please subscribe the channel and share with others also. Thank you so much. Now I'm going to start the content. This chapter, in this chapter, we are going to cover physical fitness, wellness, lifestyle, and components of physical fitness, components of wellness, then concept of positive lifestyle, and some lifestyle health threats and their prevention. Basically, when we are talking about physical fitness, fitness means simple, it's a word which defined our physical state. By this word, fitness word, we can say that if we are talking about a person's fitness, it means that person is completely fit to meet out his daily routines, energy need, जो भी उसकी जो daily routine life है, he can perform that work easily, and after performing daily routine work, he has some stored energy or some preserved energy for to meet out any emergency call. Beyond that daily routine, if he is able to cope up with that emergency call or with some extra work also, then only we can say that the person is completely fit. Second thing, when we are talking about physical fitness means when our our systems or our body components are working efficiently without any hurdle, without any disturbance or without any pain, while performing our daily routine work or daily routine task. We are not going to do any extra effort, means that task or that work should be effortlessly, without any effort or without any extra pain. If we can perform our daily routine work, then only we can say that a person is physically fit. Then बात करते हैं wellness की. When we are talking about wellness means a state of physical, mental, social and physical well-being without disease and with a perfect immune system. When we are talking about physical fitness, it means only physical fitness, means our physical work, our body. But जब हम wellness की बात कर रहे हैं, that includes our mental state, that includes our immune system, that includes our social behavior, our whole personality. Because while discussing about physical education, we have already discussed about it कि when we are talking about a perfect personality, our personality includes physical, mental, social, sometimes spiritual or emotional well-being. So when we are talking about wellness, it means that person is physically fit, diseaseless life. Mentally fit means he can
cope up with the stress, with the emotional stress, with the some emotional disasters. He can easily deal with these things. मैं एक अकॉर्डिंग टू मिस्टर डेविड लाम एक जो डेफिनेशन है वो बताता हूँ आपको मैं फिजिकल फिटनेस की. फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड द पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद स्ट्रेस. इट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल फिटनेस, फिटनेस केवल और केवल जो फोकस करता है वो फिजिकल, हमारे फिजिकल अपीयरेंस पर करता है या हमारी फिजिकल कैपेसिटी पे करता है. देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट wellness, wellness means as per the WHO या World Health Organization, a state of complete physical, mental, a state of complete physical, mental and social well-being and more merely the absence of disease or infirmity. It means wellness includes all these things: mental, social, our immune system and our behavior towards others, towards society, or our adjustment in our सराउंडिंग्स. देन बात करते हैं व्हाट इज द बेनिफिट और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस इन आवर लाइफ. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल फिटनेस, इफ वी आर गोइंग टू मेंटेन आवर फिजिकल फिटनेस, आवर परफेक्ट फिजिकल स्टेट, सो दैट जो हमारी बॉडी है वो बेसिकली डिजीजलेस होगी. हम अपनी जो डेली रूटीन का वर्क है वो बहुत इजीली परफॉर्म कर पाएंगे. एंड बियॉन्ड दीज थिंग्स हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगी. अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमारी लाइफ में जो आज के दिन में लाइफ स्टाइल डिजीज हैं या जो मेजर क्रॉनिक डिजीज हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो, जिसको हम लोग अगर कंबाइंडली बोलेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोलेंगे, या ढेर सारी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं जैसे अस्थमा, डायबिटीज़ और समटाइम्स ऑस्टियोफोरोसिस और अ लॉट ऑफ एलर्जी प्रॉब्लम इज देयर. सो if we have maintained our physical fitness और वेलनेस, तो हमारी बॉडी जो है वो टोटली डिजीजलेस होगी और प्लस हमारे जितना भी फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करेंगे. वन मोर थिंग, विद द मेंटल बैलेंस, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा जो इंटरनल व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द हिंदी वर्ड आई डोंट नो, बट जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, हमारे जो इंटरनल हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, ऐसे हार्मोन्स अगर प्रॉपरली डेवलप हो रहे हैं बॉडी में, सेक्रेट हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हमारा जो मेंटल बैलेंस है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करेगा. ऐसे कंडीशन में हमारा जो बॉडी का एक एसिड बेस बैलेंस है, जिसको हम लोग पीएच बैलेंस बोलते हैं, वो बैलेंस रहेगा. हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन वेक्टर्स हैं, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो या लिम्फेटिक सिस्टम हो, वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे. ऐसे कंडीशन में हमारा जो प्रॉपर बॉडी है वो अच्छे से काम करेगा और साथ में हम लोग डिजीज फ्री रहेंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे. सेकेंड थिंग, व्हेन वी हैव अ प्रॉपर फिजिकल फिटनेस, मेंटल प्योरिटी और वी कैन से अ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, इन दैट कंडीशन ऑटोमेटिकली हमारी जो सर्विसेज हैं उसकी जो क्वालिटी वो बढ़ जाएगी. हमारी जो सोसाइटी है वो ज़्यादा बेनिफिशियल या ज़्यादा बेनिफिटेड होगा हमारी सर्विसेज से. प्लस हमारी जो एक जो लिव लॉन्ग एंड सर्विस बेस्ड और सर्विस मोर की जो एक क्वालिटी, सर्व मोर की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है. जब हमारी लाइफ अच्छी होगी, हम डिजीज फ्री होंगे, तो हमारा जो एफिशिएंट वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. प्लस हमारी जो लाइफ है, हमारी जो एक हेल्दी, वी कैन से हेल्दी लाइफ जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाएगी. उस क्वालिटी को एनहांस होने की वजह से हमारी जो एक कह सकते हैं कि जो एक लाइफ की एजिंग है या जो हमारा एज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. थर्ड थिंग, प्रॉपर फिजिकल और फिटनेस से और वेलनेस से हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत जल्दी बूढ़े होने की जो प्रोसेस है, हमारा जो जब हमारी एजिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं उसमें हमारा जो फिजिकल जो लॉस है या जो हमारे मसल्स की जो धीरे धीरे स्टिफनेस खत्म होती है, उसकी कैपेसिटी खत्म होती है, वो तो है ही. साथ में हमारे जो इंटरनल सिस्टम्स हैं उनका भी जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होता है, ये कहीं ना कहीं से स्लो हो जाता है. लाइक जो एक BMR, हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट स्टार्टिंग में या हमारे यंग एज में मेंटेन होता है, वो ग्रेजुअली आफ्टर 40 एंड देन आफ्टर 60 ग्रेजुअली डिकाई होना या कम होना स्टार्ट हो जाता है.
ऐसी कंडीशन में हमारी जो फिटनेस है या हमारी जो नॉर्मल सर्वाइवल है वो धीरे धीरे टफ होता है। बट अगर हम प्रॉपर अपना फिजिकल फिटनेस और वेलनेस मेंटेन कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा एजिंग प्रोसेस है उसको हम ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे और हम एक लंबी हेल्दी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देन जब भी हम प्रॉपर अपने फिजिकल फिटनेस वेलनेस की बात करते हैं तो हमारा एक प्रॉपर रूटीन सेट होता है। रूटीन अबाउट आर एवरीथिंग लाइक आर फूडिंग, आर लॉजिंग, एक्सरसाइजेस प्लस रेस्ट, ये सारी चीज़ें सेट होती हैं। और एक प्रॉपर रूटीन के बिना हम लोग अपनी एक फिजियो हमारी जो एक वेलनेस लाइफ है या एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम खुद को हेल्दी और ज़्यादा फिट रखने की कोशिश करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक प्रॉपर सेट रूटीन होता है जो कि हमारी लाइफ या हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको बहुत सेट रखता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स हमारी बॉडी को भी हर हमने कभी ये सोचा हुआ कि कई बार या मोस्टली लोगों को रात में ही नींद क्यों आती है, हमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही भूख क्यों लगती है, या लंच के टाइम पे जनरली हमें भूख क्यों लगती है। ये कुछ हर एक बॉडी में या हर एक क्रिएशन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो कि हमारी जो डेली बिहेवियर है, हमारा जो डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे सेट हो जाता है। आप कई बार खुद फील करेंगे कि कुछ जो चीज़ें हम अगर पर डे करते हैं, एक सेम टाइम पर करते हैं, फिक्स टाइम पर करते हैं, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाती है उस चीज़ को मीट आउट करने के लिए। और अगर हम किसी दिन नहीं करते हैं उसको तो हमारी बॉडी उसके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। लाइक लोगों को जिस तरह से टॉक्सिकेंट्स का एक नशा होता है, एक जो अल्कोहलिक लोगों को अल्कोहल का नशा होता है, ऐसे लोगों को एक्सरसाइज का भी प्रॉब्लम होती है। अगर जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं वो अगर 2 दिन एक्सरसाइज ना करें तो मे बी उनकी जो रेस्टलेसनेस वो बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपनी एनर्जी को लेकर के। तो प्रॉपर फिजिकल फिटनेस और वेलनेस से हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो प्रॉपरली सेट हो जाती है और जो कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो लाइफ की जो इंटरनल वर्किंग है उसको बहुत एफिशिएंट कर देती है, उसको बहुत स्मूथ और नॉर्मल कर देती है। देन जब हम फिट होंगे तो डेफिनेटली डिजीज से दूर होंगे। ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट्स, इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। प्लस हमारा जो इकोनॉमिकल वेलनेस है या जो हमारी जो विगन से एक जो हमारे जो खर्चे हैं टुवर्ड्स आर हेल्थ या फिटनेस वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा और हम ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा हम वेल्दी होंगे अपनी चीज़ों को लेकर के। एक फिट पर्सन अपनी जो डेली रूटीन वर्क है उसको बहुत इजीली मीट आउट करता है, उसको थकान नहीं होती है। प्लस उसकी जो सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो ज़्यादा इमोशनली और बिहेवियरल वाइज बहुत बैलेंस्ड होती है। ऐसा इंसान जिसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, जिसका वेलनेस मतलब जो डिजीज से बहुत दूर है, ऐसे लोगों का हम जो सेल्फ स्टीम है और बॉडी इमेज है वो बहुत अच्छा होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टीम होती है हमारी खुद की थिंकिंग खुद के लिए, या हमारा खुद का फेथ हमारे अपने ऊपर, वो हमारा सेल्फ स्टीम होता है। डेफिनेटली अगर हम डिजीज फ्री हैं, हम एकदम पूरी तरह से हेल्दी हैं, तो हमारे अपने बारे में जो हमारी खुद की थॉट है वो बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत हम एनर्जेटिक होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। और बॉडी इमेज होती है हमारी बॉडी को लेकर के हमारा खुद का अपना अपीयरेंस है, हमारा खुद का अपनी सोच। मीन्स हम कॉन्फिडेंट होंगे किसी भी काम को करने के लिए इजली, किसी भी फिजिकल चैलेंज को इजली मीट आउट करने के लिए, या किसी भी फिजिकल और मेंटल। जब हम फिटनेस और वेलनेस दोनों की बात करते हैं तो हम दोनों की बात करते हैं, बॉडी इमेज की भी और सेल्फ स्टीम की भी। दोनों ही हमारी बहुत टॉप क्वालिटी पे होती है, बहुत अच्छी होती है और बहुत इनहेंस कंडीशन में होती है। इससे हम किसी भी फिजिकल चैलेंज को या वी कैन से मेंटल चैलेंज को या मेंटल स्ट्रेस को बहुत इजीली कॉप अप कर सकते हैं। देन बात करते हैं लाइफ स्टाइल की। लाइफ स्टाइल मीन्स द वे ऑफ लिविंग लाइफ। लाइफ स्टाइल मतलब हम जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से हमारा रहना, उठना, बैठना, खाना, सारी चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल। जब हम एक अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी की एक डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर, उसने ये बताया हुआ कि लाइफ स्टाइल इज अ वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग, इट रिफ्लेक्ट्स
द एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। मीन्स हम जिस तरह से रह रहे हैं, जो हमारी लाइफ, हमारी लिविंग स्टाइल है, उसके टूवर्ड्स हमारी जो एटीट्यूड्स हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी लाइफ स्टाइल पर। अब नाउअडेज वी ऑल आर लिविंग इन मॉडर्न लाइफ स्टाइल। हमारी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, वी ऑल आर टोटली डिपेंड अपॉन मशीन्स ओनली। लाइक मैं एक मॉर्निंग से इवनिंग तक की बात करता हूँ, हमारा जो खाना बन रहा है वो मशीन्स पे बन रहा है, हमारे जो कपड़े साफ़ हो रहे हैं मशीन में साफ़ हो रहे हैं, हम लोग चलने के लिए डिपेंड, इवन हमारी खुद की मोबिलिटी इतनी डिस्टर्ब है, अगर हमें कुछ 10 मीटर्स या 100 मीटर भी वॉक करके जाना होगा तो वी आर डिपेंडेंट अपॉन मोटरसाइकिल्स, कार्स और अदर मैकेनिकल थिंग्स। हमारी जो सिंपल सी एक बहुत बेसिक सी बात है कि अगर हमें अपनी सोसाइटी में भी जो कुछ 200-300 मीटर की दूरी पर भी लोग रह रहे हैं, अगर हमें उनसे भी अपना कुछ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो वी आर नॉट गोइंग देयर। फिजिकली हम खुद को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, वी आर इन हैबिट ऑफ यूजिंग सेल फोन्स और हम उनसे हालचाल ले रहे हैं। तो इन दैट कंडीशन जो एक फिजिकल इनएक्टिवेशन है वो हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। प्लस जब हम फिजिकली फिट नहीं है, हमारे जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हमारा जो इमोशनल फिटनेस है, हमारा जो मेंटल फिटनेस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर डिपेंड हो रहे हैं, जो हैप्पीनेस है वो वहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हम फूड की तलाश में, या कह सकते हैं हम खुद अपने फूड्स के लिए वी कैन से फ्री नहीं है या सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द थिंग्स विच इज इजिली अवेलेबल इन मार्केट और विच इज इजिली अवेलेबल इन आवर होम, एंड इजिली वी आर नॉट फाइटिंग विद देम, वी आर नॉट ट्राई टू चेंज देम। जो भी हमें मिल रहा है हम बस उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उससे हम सेटिस्फाइड हैं। दिस इज just because of these things we are suffering with a lot of lifestyle diseases, not only physical disease, we are suffering with a lot of mental diseases, जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रही है, हमारी जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इवन इकोनॉमिकल और इमोशनल जो बैलेंस है वो, उसका जो एक एक्विलिब्रियम कंडीशन है वो टोटली डिस्टर्ब्ड है। एंड दैट इज वाई नाउअडेज वी नीड अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, वी नीड प्रॉपर वर्कआउट upon our routine, upon our mental fitness, social fitness. Now, when we are talking about positive lifestyle, why it is needed? पॉजिटिव लाइफस्टाइल हमारे लिए ज़रूरत क्यों है? क्यों हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल की बात करते हैं? जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो पॉजिटिव मीन्स एनी स्टिमुलस और एनी एक्शन और एनी थिंग विच इज़ यूजफुल और विच इज़ very, what I can say, which is useful or which is suitable for us, that is called positivity. एक ऐसा एक्शन जिसमें कुछ क्रिएटिव हो, कुछ बेनिफिशियल हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। अब जब हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल की बात करते हैं, इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं अपनी डेली रूटीन वर्क को। फॉर दैट वी नीड फिजिकल फिटनेस, जिसमें हम एक्सरसाइजेस को ऐड करते हैं, हम अच्छी हेल्दी डाइट को ऐड करते हैं, योगा, ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी जो फिजिकल प्योरिफिकेशन है वो होता है। और एक बार हमारा फिजिकल, बिकॉज वी नो ना कि एक जो हेल्दी ब्रेन है वो हेल्दी बॉडी में पाई जाती है। तो जब हम एक हेल्दी बॉडी को अपना टारगेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मेंटल वेलनेस है वो अच्छा होता है। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है हमारी लाइफ को लेकर के, हमारी लाइफस्टाइल को लेकर के, ऑटोमेटिकली हम मशीन से या हम जो पॉल्यूटेड चीज़ें हैं उनसे थोड़ी थोड़ी अपने आप को अवे करते हैं, दूर करते हैं, और धीरे धीरे जो हेल्दी चीज़ें हैं उनकी तरफ हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। एंड इनसे हमारी ऑटोमेटिकली जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छी लाइफस्टाइल से हमारी सोच चेंज होती है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है। साथ ही में जो एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल है इससे हमारी जो लिविंग क्वालिटी है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाती है सोसाइटी में, और हम एक अच्छी, एक पॉजिटिव या एक कह सकते हैं कि एक क्रिएटिव यूजफुल लाइफ के लिए आगे मोटिवेटेड होते हैं। देन हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल।
फिजिकल फिटनेस की जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, देयर आर बेसिकली 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स इन दैट द फर्स्ट इज strength, second is endurance, then speed, flexibility and agility, or we can say coordinative ability. When we are talking about strength basically एक ऐसी quality है, it is the ability of work to generate force or to overcome any resistance, like it would be a work of a single muscle, और ये एक पूरे ग्रुप ऑफ मसल्स का भी ओवरकम हो सकता है, या उसके द्वारा जो डेवलप्ड एनर्जी है या रेजिस्टेंस है उसके अपोजिट जो हमारा पूरा एक ग्रुप ऑफ मसल्स वर्क कर रहा है वो भी हो सकता है. द अमाउंट ऑफ फोर्स, और वी कैन से द एनर्जी विच कैन बी क्रिएटेड बाई अ सिंगल मसल और अगेंस्ट अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल. देन लाइक स्ट्रेंथ का जब हम बात करते हैं, दैट इज अ पावर और एनर्जी विच इज क्रिएटेड फॉर doing any against any resistance. Like if we are going to lift a pen, in my hand there is a pen, so we need a certain power or force to lift this pen. This is our strength. अभी आगे जब हम एंडोरेंस पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्ट्रेंथ और एंडोरेंस में, वो वहाँ पर क्लियर करेंगे हम लोग. बट किसी भी मसल्स की या ह्यूमन बॉडी की किसी बॉडी पार्ट का किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की जो फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, देयर इज बेसिकली 2 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक स्ट्रेंथ, ऐसी पावर या ऐसी एनर्जी या फोर्स की जहाँ पर हमारी बॉडी डायनेमिक होती है, मूविंग होती है, वहाँ पर जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक स्ट्रेंथ. लाइक रनिंग, जॉगिंग और throwing anything or long jump. These are some work where we need strength with movement. That is called dynamic strength. जब हम डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ: मैक्सिमम डायनेमिक स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम डायनेमिक स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज अ क्वालिटी ऑफ पावर, और दिस इज अ स्ट्रेंथ जो हमें किसी भी वर्क को मैक्सिमम लेवल पर अपने मसल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उससे मैक्सिमम फोर्स को वन टाइम जनरेट करने के लिए करने से मिलती है. लाइक ड्यूरिंग हैमर थ्रो, ड्यूरिंग शॉर्ट पट थ्रो और जेवलिन थ्रो, हम हमारे जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं या हमारे सारे जॉइंट्स हैं जो एक फोर्स क्रिएट करते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, जो शॉर्ट पट है या हैमर है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेंथ. देन बात करते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की. एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज अ स्ट्रेंथ और फोर्स ऑफ अ सिंगल मसल और ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल्स जो हमें बेसिकली किसी भी एक कुछ क्विक वर्क के लिए या एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के वर्क को डन करने के लिए करते हैं, जिससे हमारे किसी एक मसल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम कवर करते हैं या मेजर करते हैं. लाइक ड्यूरिंग लॉन्ग जंप और ड्यूरिंग स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, हमारी जो पैर की मसल्स हैं, चाहे वो थाइस की मसल्स हों या हमारी काफ मसल हो, इन तीनों ही मसल्स की जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो हम कवर करते हैं ड्यूरिंग लॉन्ग जंप और हॉप स्टेप जंप और ड्यूरिंग पोल वॉल्ट. देन बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ एंडोरेंस की. स्ट्रेंथ एंडोरेंस एक ऐसी क्वालिटी है या एक ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जो कि हमें उस स्ट्रेंथ को एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यू करना होता है. लाइक मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आई कैन लिफ्ट दिस पेन, दिस इज माई स्ट्रेंथ. बट अब इस पेन को मैं कितनी देर तक उठा करके रख सकता हूँ, दिस इज अप टू माई स्ट्रेंथ एंडोरेंस. जो हमारी स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को मैं कितनी देर तक आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, दैट इज माई स्ट्रेंथ एंडोरेंस. लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ऐसे ढेर सारे इवेंट्स हैं, साइकिलिंग और स्विमिंग और समटाइम्स लॉन्ग रेसेस फॉर स्केटिंग. ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर हमें स्ट्रेंथ एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ती है.
देन बात करते हैं स्टैटिक एंडोरेंस की। स्टैटिक एंडोरेंस ऐसी स्ट्रेंथ है जहाँ पर हमें बेसिकली अपनी बॉडी को एक जगह पर फिक्स रखना होता है। दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस और आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स, जहाँ पर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो रहती है। बस हमें अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को स्ट्रेच करना होता है या उसको फोर्स देना होता है, जिसमें कि हम लोग योगा की एक्सरसाइजेस देख सकते हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। ऐसी चीज़ों में हमारी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बट हमें उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, और जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में ये टॉपिक पूछा भी जाता है या शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। देन हम लोग बात करते हैं एंडोरेंस की। हम लोग बात कर रहे थे एंडोरेंस इज बेसिकली cope up with the resistance for a long durance activity. How it is up to how much we can sustain this force or this energy against that resistance. Like मैंने भी एग्जांपल दिया था कि जो भी स्ट्रेंथ हम डेवलप कर रहे हैं किसी भी काम को लेकर के, उसको हम कितनी देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट इज अप टू आवर एंडोरेंस। अब बात करते हैं, ऐसी ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोरेंस। बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एंडोरेंस और लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस हमारी वो कैपेसिटी है जब हम किसी भी रेस को या किसी भी ऐसी एक्टिविटी को जो थोड़ी टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है, लाइक 100 मीटर रेसेस या अप टू 500 मीटर रेसेस, जितने 400 मीटर रेसेस जितने होते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। जब हम लोग लॉन्ग एक्टिविटी या लॉन्ग एंडोरेंस की बात करते हैं, लॉन्ग एंडोरेंस जो एक्टिविटीज़ होती हैं 500 मीटर और 5000 मीटर एबव रेसेस, क्रॉस कंट्री और समटाइम्स लॉन्ग स्विमिंग इवेंट्स, और प्लेइंग अ फुटबॉल मैच फॉर 40 मिनट्स कंटिन्यू रनिंग। दीज थिंग्स आर डिपेंड्स अपॉन आवर एंडोरेंस बिकॉज दैट वी नीड। जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हमें बहुत देर तक कंटिन्यू करना पड़ता है अपने उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के। देन द थर्ड इवेंट इज कॉल्ड स्पीड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, स्पीड इज आर डिपेंड्स अपॉन आवर रिएक्शन टाइम। हम कितना क्विकली किसी भी रेजिस्टेंस को या अपनी जो हमारी कोई भी स्टिमुलस है उसके टुवर्ड्स हम रिएक्ट करते हैं, दैट इज अप टू आवर स्पीड। आवर स्पीड इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन आवर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड प्रैक्टिस. How we are training our neuromuscular coordination. When we are talking about neuromuscular coordination, it is a coordination among our nervous system and our muscular system. जो हमारी मसल्स हैं वो किसी भी स्टिमुलस को किस तरह से रिसेप्ट कर रही हैं, किस तरह रिसीव कर रही हैं, और फिर उस मैसेज को कितना हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचा रही हैं, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो। और उन दोनों जो सेंटर है हमारी इंफॉर्मेशन का, वहाँ से क्या रिएक्शन मिल रहा है हमारे ऑर्गन्स को, और हमारे ऑर्गन्स कितना क्विकली उसको फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ अप टू आवर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। एंड बेसिकली जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड बेसिकली किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जितना क्विकली हम उसको रिएक्ट करते हैं, जो हमारा रिएक्शन टाइम होता है या शॉर्ट पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड आवर स्पीड। जब हम स्पीड की बात करते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला है रिएक्शन एबिलिटी। जब हम रिएक्शन एबिलिटी मीन्स, जब भी हम, मैं उसी डिस्कस कर रहा था अभी, कि जब भी हमें कोई भी स्टिमुलस मिलता है, लाइक फॉर 100 मीटर रेस और फॉर एनी रेस, जब जो स्टार्टर होता है वो जब कमांड देता है फॉर स्टार्ट, शूट गन करता है या कुछ भी ऐसे जो कमांड होता है, उसको बेसिकली जब कोई भी जो एथलीट है कितना जल्दी उसको रिसीव कर रहा है और उस पर अपने आप को तुरंत एक्सेलरेट कर रहा है, वो डिपेंड करती है हमारी रिएक्शन एबिलिटी पे। सेकेंड पॉइंट इज एक्सेलरेशन एबिलिटी। सेम थिंग इज देयर, जितनी जल्दी वो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है और फिर उस पर कितना क्विक रिएक्शन करके अपनी बॉडी को उस स्टिमुलस के लिए या उस टास्क के लिए अपने आप को एक्सेलरेट कर ले रहा है। देन बात करते हैं लोकोमोटर एबिलिटी। इस एक्सेलरेशन को कितनी देर तक वो कंटिन्यू रख रहा है जहाँ तक कि उसकी ज़रूरत होती है, दैट इज अप टू आवर लोकोमोटर कैपेबिलिटी। एंड देन मूवमेंट एबिलिटी, मतलब हम
उस जो हमारी बॉडी है या जो भी रिएक्शन जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारी मसल्स हैं वो कितनी देर तक इस पर्टिकुलर इवेंट को कंटिन्यू कर सकती है या उस पर्टिकुलर चीज़ को हमारी मसल्स को मतलब कॉप अप कर सकते हैं, दैट इज अप टू आवर मूवमेंट एबिलिटी। देन एक लास्ट पॉइंट इज स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस इज जो रेस हमने या जो एक्सेलरेशन हमने कंटिन्यू किया हुआ है या हमने पिक किया हुआ है, उस एक्सेलरेशन को हम कितनी देर तक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज अप टू स्पीड एंडोरेंस। Our fourth physical fitness component is flexibility. Flexibility is the range of movement of joint. हमारे जितने भी joints हैं या हमारी muscles हैं वो कितना maximum stretch हो सकती हैं या उसकी जो movement है joints का वो कितना maximum होता है, it is up to our flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी कई बार हमारी मसल्स पर डिपेंड करती है, हमारी मसल्स कितनी फ्लेक्सिबल हैं स्ट्रेस को कॉप अप करने के लिए या किसी भी इम्पैक्ट को फेस करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन आवर बेसिकली स्ट्रेचिंग, और कह सकते हैं कि हमारी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है, हमारे जॉइंट्स को हमने कितना ट्रेंड किया हुआ है उसके मूवमेंट को बढ़ाने के लिए या उसके जॉइंट की जो रेंज है, रेंज ऑफ मूवमेंट्स उसको बढ़ाने के लिए। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं बेसिकली दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। जब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हमें जिसको शो करने के लिए, जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, लाइक डूइंग एक्सरसाइजेस विद अ पार्टनर। हम लोग पार्टनर साथ में हैंड स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग या कई बार योगिक कुछ ऐसे मूवमेंट करते हैं जिसमें हमें पार्टनर की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इवन समटाइम्स वी कैन यूज वॉल और सम अदर ऑब्जेक्ट्स जहाँ से कि हम अपनी मसल्स को या अपने बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली स्ट्रेच करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी विच डजंट मीन एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जिससे कि हम खुद की अपनी बॉडी के ऑब्जेक्ट्स या बॉडी पार्ट्स को बेसिकली स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइक वाइल डूइंग योगा और सम अदर एक्सरसाइजेस लाइक आर्म फ्लैक्स, आर्म हैंग और आर्म लेग स्ट्रेचिंग, और समटाइम्स सम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो कि बेसिकली हेल्प करती हैं हमारी मसल्स, हमारे जो जॉइंट्स हैं और मसल्स हैं उनके रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाने में। एक जो लास्ट पॉइंट है, जो फिफ्थ हमारी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और वी कैन से एजिलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल और मेंटल अवेयरनेस। जब हमारा जो फिजिकल फिटनेस है और हमारा जो मेंटल फिटनेस है, मीन्स हम जिसको बात कर रहे थे अभी, अपना न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या न्यूरोमस्कुलर फिटनेस, जब दोनों का ही एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, मीन्स किसी भी एक्शन का हमारा जो रिएक्शन होता है वो कितना क्विक होता है और कितना प्रो एम होता है, दैट इज अप टू आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की, वो बेसिकली रिफ्लेक्सेस हमारे ट्रेंड होते हैं इस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के द्वारा। जब हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की बात करते हैं, इसमें बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जो केवल एक बॉडी मसल को इन्वॉल्व कर सकता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेटरी एबिलिटी होती है जिसमें 2-3 या एक ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होता है। ऐसी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऐसी जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेटरी एबिलिटी। कुछ बहुत ही ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है जिसमें बेसिकली हमारे जो बॉडी के बहुत बेसिक फंडामेंटल्स मतलब मूवमेंट इन्वॉल्व करते हैं हम लोग, या ऐसी जिसमें फंडामेंटल मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी भी होती है जिसमें हमारी जो हमारा एनएससीएल बैलेंस है या हमारा जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो कितना क्विक रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी स्टिमुलस को लेकर के, वो डिपेंड करता है हमारी रिएक्शन एबिलिटी पर। देन बैलेंस एबिलिटी, डेफिनेटली वाइल परफॉर्मिंग एनी एनी रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन हम कितने बैलेंस्ड हैं, हमारा जो इक्विलिब्रियम है हमारे बॉडी बैलेंस का प्लस हमारा मेंटल बैलेंस का, वो कितना परफेक्ट है, दैट इज अप टू आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसके अलावा भी कई ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं, लाइक वी कैन से एडॉप्टेशन एजिलिटी और रिदमिक एजिलिटी। ये ऐसी जैसे हम लोग
जुम्बा परफॉर्म करते हैं या एरोबिक एक्टिविटीज़ करते हैं, इट इज़ अप टू आवर बेसिकली वी कैन से कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ बेसिकली हमारी बॉडी के कंप्लीट फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर मसल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। एक बात बहुत क्लियर हो गई है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, तो यहाँ हमें बेसिकली अपनी बॉडी या हमारी फिजिकल जितनी चीज़ें हैं हमें उनके बारे में बात करनी है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, द फर्स्ट थिंग इज आर मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंडोरेंस। जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, हम मसल्स को अपने ट्रेंड करेंगे, प्लस मसल्स को और बॉडी को जितनी बैलेंस डाइट से फीडिंग करेंगे, उतना ही हमारी मस्कुलर एबिलिटी स्ट्रांग होगी, हमारी स्ट्रेंथ अच्छा होगा, हमारा एंडोरेंस प्रॉपर ट्रेंड होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ की। कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ तब आएगा जब हम ज़्यादा एरोबिक एक्टिविटीज़ करते हैं। कार्डियो और वैस्कुलर, यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड्स हैं। कार्डियो मीन्स हमारा हार्ट और वैस्कुलर सिस्टम मतलब हमारी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है। हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा हार्ट और हमारी लंग्स ट्रेंड होंगे, हमारी टाइडल वॉल्यूम, हमारी लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है, हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, ये सब बढ़ जाता है। ये सब ऐसे साइंटिफिक टर्म्स हैं। कार्डियक आउटपुट लाइक हमारा ब्लड कितना ब्लड पंप कर रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी लंग्स की है, टाइडल वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें अभी जब आगे हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे तो इसको हम फिर क्लियर करेंगे। और इफ़ एनी प्रॉब्लम इज देयर तो डेफिनेटली आई विल डू क्लियर। तो जब हम कार्डियोवैस्कुलर ट्रेंड की बात करते हैं, जो ट्रेंड एथलीट होते हैं उनके हार्ट की ब्लड पंपिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनके लंग्स की जो एल्वियोलाई सैक हैं जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं पोर्स, और ऐसे लोगों में हेल्थ के जो हार्ट और लंग्स की जो रिस्क हैं, जो डिजीज रिस्क होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। देन हम लोग बात करते हैं बॉडी कंपोजिशन की। डेफिनेटली वी नीड अ प्रॉपर एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड जो हमारे मसल्स का और जो न्यूट्रिएंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे जो बॉडी में का कॉम्पोजिशन है फैट का, या जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैट का, प्लस जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक बहुत परफेक्ट अमाउंट में होना चाहिए। देन ओनली आवर बॉडी विल बी फिट और हम एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। देन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस की। वेलनेस कंपोनेंट्स में बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि फिटनेस के साथ साथ में हमें मेंटल एबिलिटी को भी चेक करना है। हमें अपनी कंप्लीट हेल्थ स्टेट को फॉलो करना है। तो इसमें हम बात करते हैं फिजिकल वेलनेस की, जिसमें हम कुछ सर्टेन हेल्दी रूल्स फॉलो करते हैं, टाइम से उठना, बैठना, खाना, सारी चीज़ें। देन इंटेलेक्चुअल वेलनेस की, हम अगर फिजिकली फिट हैं तो डेफिनेटली हमारा हार्मोनल सिस्टम अच्छा होगा, हमारे थॉट प्रोसेस अच्छे होंगे, हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रांग होंगे, हमारे एथिकल प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी, और हम लोग किसी से भी इंटरेक्ट करते समय हम बहुत ही इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होंगे और हम इंटेलेक्चुअली बहुत बैलेंस्ड होंगे। देन इमोशनल फिटनेस डेफिनेटली हम स्ट्रेस, जो लोग फिजिकल बहुत वर्कआउट करते हैं या जो फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, वो इमोशनली बहुत बैलेंस रहते हैं क्योंकि उनका हार्मोनल सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, एड्रेनलिन का सिक्रेशन बहुत बैलेंस्ड वे में होता है, इसलिए बहुत ही फिट रहते हैं। देन सोशल वेलनेस, डेफिनेटली ऐसे लोगों का जो एडजस्टेबिलिटी है सोसाइटी में वो बहुत अच्छी हो जाती है, और उनका फिजिकल, फाइनेंशियल, इवन इमोशनल कंट्रोल अपने ऊपर बहुत अच्छा होता है, जिससे उनका एडजस्टमेंट बहुत बढ़ जाती है। देन बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ थ्रेट्स वाइल लाइफ स्टाइल। हम लोग जो आज की सोसाइटी में हेल्थ रिस्क है वो कैसे लाइफ स्टाइल से कवर कर सकते हैं, उसके ढेर सारी कंपोनेंट्स हैं या उसके ढेर सारे तरीके हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट। हम अच्छी डाइट लेकर के अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अपनी एज, जेंडर और वर्क के अकॉर्डिंग डाइट लें, ना कि ढेर सारी न्यूट्रिटिव डाइट हम लेते रहें लगातार। देन रेगुलर फिजिकल वर्कआउट, जिसमें ढेर सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग और साइकिलिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेस और समटाइम्स सम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। सी एक्सरसाइज हर एज के लिए, हर जेंडर के लिए और हर तरह के लोगों के लिए, इवन दोज हु आर ऑन द बेड, उनके लिए भी बहुत स्लो और बहुत माइक्रो एक्सरसाइजेस हैं जो करके वो अपने आप को धीरे धीरे अपनी फिजिकल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमें भी इन सब चीज़ों को आगे ध्यान रखना है। प्लस कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करें, हम इंटॉक्सिकेंट्स को अवॉइड करें, हम अपनी जो
फिजिकल मूवमेंट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको बढ़ाएं, कोशिश करके उसको ज़्यादा अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व करें चीज़ों में। हमारी जो थिंक प्रोसेस हो बहुत पॉजिटिव हो टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स अदर पीपल। साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करने के लिए हमें योगा, मेडिटेशन, समटाइम्स इवन मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लस हमें जो कुछ अदर सोशल जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करते हुए हमें अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है इन सब चीज़ों को लेकर के, ताकि हमारी जो लाइफस्टाइल हो बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ही नेचुरल हो। थैंक यू सो मच। इस पूरे चैप्टर को मैंने एक वीडियो में कवर किया। इट वॉज अ वेरी इजी चैप्टर और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप द क्वेरी इन माई इनबॉक्स। सेकेंड थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट न्यू वीडियोज़, और मेरा भी थोड़ा सा पार्ट बढ़ेगा अच्छे से।